नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के कठोर प्रावधान वाले मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया। देश में सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा जनहानि होती है। ऐसे में कुछ खास उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को 10 गुना तक बढ़ाया गया है, ताकि कठोर आर्थिक दंड के भय से सड़क पर वाहन चलाने में अनुशासन स्थापित हो सके। आइए देखते हैं मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा के प्रमुख अंश। श्री नरेश गुजराल, प्लीज। Sir, I congratulate the Honorable Minister for increasing the minimum compensation amount which is now going to be paid to the victims. Also, sir, increasing penalties for rash driving, for drunken driving, etc. will put some order on the roads which are totally chaotic today. Sir, this government is committed to fighting corruption. I was a member of the select committee and many stakeholders came before us. And most of them said that the den of corruption in this country are the RTOs. It is estimated that they make anywhere from 15,000 crores to 25,000 crores in corruption money every year. Sir, this bill will go a long way in eliminating that corruption. My first suggestion is, sir, 2 helmets should be made compulsory to be priced along with a two-wheeler. Because when a company gives you those 2 helmets, they will be of international standard. Mr. B. Vijay Reddy. Sir, the existing Indian law meets the standards of WHO for only 1 out of 5 factors of road safety. Sir, it performs poorly with respect to regulation of speed, increasing the motorcycle helmet use, reducing the drunken driving and protection of children on roads. Sir, central government guidelines for aggregator companies. Sir, clause 36 of the bill. The state governments will issue licenses to the aggregators in conformity with the guidelines issued by the central government. कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। States are allowed to frame the rules in conformity with the central government enactment. There are certain states which have already framed the guidelines, and there could be cases where such state guidelines are at variance with the central guidelines. In such scenario, the central guidelines will prevail because the motor vehicle laws fall under the concurrent list. Sir, by virtue of clause 30 of the bill, a new section 66A is incorporated by which the central government may develop national transport policy. I agree with the Honourable Minister with regard to the policy. It is right the government of India to make illustrate the policy and guidelines provided. Except the state government, let the state government make the law and let them implement the law. Few suggestions with regard to the bill is concerned. I finally raise the point. Fuel prices are changing on daily basis. In 2012, a litre of diesel was of rupees 52. Now it is costing 82. Even after drastic reduction of crude oil prices, the international market, I think the issue is addressed by the transport sector will benefit. The heavy taxation on motor vehicles, now 12% of GST is imposed on transporters, which actually huge burden on the sector. Now the government, once the government India gets back the investment of particular, with regard to the toll tax, once the government India gets back the investment of a particular road, I think toll can be removed from a particular road. Thank you. Sri Binay Vishwamji. Sir, nobody can object. Accidents should be avoided. Roads in the country should not be made as killing grounds, sir. We agree with the bill. But, there's a big but, sir. The government believes that only corporates can save the roads. Only corporates can save the vehicles.
Only corporates can do a good for the nation. That approach, that philosophy is very much visible in this bill, sir. Sir, the bill says that the workers are the culprits. Never, never, never. They are not the culprits, sir. The workers are the people who run the country in everywhere. They drive the vehicles. They drive the ministers. They drive the MPs. They produce the wealth. And this bill says that forget the workers and snatch away the rights and do everything good for the corporates. That approach also should be condemned, sir. Mr. Sul Kumar Gupta. इस बिल के माध्यम से राज्य सरकारों का राजस्व में कमी आएगी जो केंद्र सरकार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि बिल को पढ़ने के बाद में बीमा कंपनियों को अधिक से अधिक फायदा इसके अंदर पहुंचाने की चेष्टा की गई है। बीमा कंपनी 2.5 लाख, 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की उसकी लायबिलिटी सीमित हो जाएगी। पहले ये अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अब पीड़ित के दायित्व को जो मालिक पे धकेल दिया जाएगा या ड्राइवर पे धकेल दिया जाएगा, उसके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो किसी को पूरा कर सके। पीड़ितों को दावा दायर करने का समय अब 6 महीने तक सीमित कर दिया गया है। कोई व्यक्ति सड़क के हादसे में मौत का शिकार हो गया, उसका परिवार लावारिस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और उसको 6 महीने के लिमिट में बांध दिया जाए कि 6 महीने में अपना क्लेम फाइल करो। ये पूरा अमानवीय है, अव्यवहारिक है, गैर कानूनी भी है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नजदीकी से निगरानी किए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में पिछले वर्ष केवल 3% कमी आई है। महोदय, जो कि वर्ष 2022 तक 50% लक्ष्य से बहुत दूर है। अभी देश में हर साल 1.46 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं से होती है। अतः इसको रोकने के व्यापक प्रबंध किए जाने की आवश्यकता है जिससे सड़क सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। We talked about accidents, we talked about road safety. Who dies in the accident? Either a pedestrian dies, or a passenger in the bus or the car dies, or the driver dies, or some other people on the footpath who are just run over. Those people who die, they get the insurance if they are insured. A pedestrian, if he is insured for life, he will get the insurance. If the driver dies or has a serious injury, he is entitled under the new bill only rupees 2.5 lakhs to rupees 5 lakhs according to the injury and according to the victimhood that he suffers. The insurance company has said that most of this money will come, that is 2.5 lakhs to 5 lakhs to maximum 10 lakhs, will come only from insurance. Rest of the money will be paid by the owners of the car. Now, majority of the people who own the car today in India are middle class people who own the car and actually meet with an accident, and their car price is much lower than the amount they will have to pay as compensation. Sri S. Muthukarupan. Sri S. Muthukarupan. The compensation for road accident victims, the central government will develop a scheme for cashless treatment of road accident victims during golden hour. The bill defines golden hour as the time period of up to 1 hour following a treatment injury, during which the likelihood of the preventing death through prompt medical care is the highest. The central government may also make a scheme for providing interim relief to claimants seeking compensation under third-party insurance. The bill increases the minimum compensation for hit-and-run cases as follows. In case of death, from 25,000 to 2 lakhs, and in case of grievous injury, from 12,500 to 50,000 rupees. These are welcoming measures in this bill, sir. Again, the proposed section 211A is intended to empower the central government to levy and collect fees and taxes through any office, authority, body or agency owned or controlled by the central government in a particular manner. This will be not only be an encouraging operation on the exclusive power of the state government, but also affecting the state revenue. Sri Anil Desai. India is a signatory to Brasilia Declaration and is committed to reduce the number of road accident fatality by 50% by the year 2020. So this important part of this bill is
bill proposes to form motor vehicle accident fund, which will provide compulsory insurance to cover. Also, the good feature of this bill is that cap on liability for third-party insurance has been removed, while calculating the compensation to be paid to the next of the kin of the deceased victims. His qualification, profession, income and his family background will be taken into consideration accordingly. Amount of consideration will be calculated. In 2016 bill, maximum liability was fixed at 10 lakhs for death and 5 lakhs for the previous injury. It is good that cap is being removed now. The bill has been removed for the calculation of the liability for compensation could be arrived at. Only thing Minister has to ensure that the major part of the compensation which is calculated, I think with Mr. Kelkar, he has said, that major part should come from the insurance company and not from the car owner who is involved in the accident. 30 वर्षों बाद यह बिल आया है और निश्चित रूप से जब इतने लंबे अंतराल के बाद कोई बिल आया है तो उसमें बहुत सारे बदलाव होना लाजमी है। पिछले कुछ दिनों में सड़कों में 5 लाख दुर्घटना हुआ, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हुई। माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं उसमें 2020 में वो कह रहे हैं इस बिल में कि 50% दुर्घटना खत्म होगा, लेकिन दुर्घटना कैसे आप खत्म करेंगे उसके बारे में इस बिल में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मंत्री जी ने इसमें बहुत सारे नियम ऐसे बताए हैं जो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार को पावर दे रहे हैं, लेकिन इस बिल में कहीं पे ये उल्लेख नहीं है कि आप राज्य शासन को कितना अनुदान, कितना पैसा, कितनी धनराशि मुहैया कराएंगे, उसका इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं है। डॉक्टर एल हनुमंतैया। This bill majorly increases huge penalties on various traffic violations. Dangerous driving, it was 1,000 and you have made it 5,000. Second offense, it was 2,000 to 10,000. This improportionate increasing of fines is not good for this country, sir. I am surprised to see the people who are responsible to design the road, construction of road, maintenance of the safety standard of the road, if they are failed, your fine is only 1 lakh. Sir, your contracts are in 1,000 crores and you are fining only 1 lakh. Whereas poor drivers, you are charging 5,000, 1,000 to 10,000, 2,000 to 10,000. This is the proportionate which you have made it, sir. Dr. T. Subbarami Reddy. Drunken, one of the major reasons for the accident, rash driving with the drunkenness also. You have proposed some fine. It is not sufficient. Actually, you must give them big whip for these drivers who with drunkard and driving. Not only fine, the license should be cancelled, and next step also you must give much more punishment is very important. Otherwise, this will minimize the road accidents. The man is made to be afraid that he will be punished severely if he goes with drunkenness. जारी है राज्यसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पर संसद संवाद। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ड्राइविंग लाइसेंस का उद्देश्य, संशोधन का उद्देश्य है कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को नागरिक हितैषी बनाना है। मैं आपको कहूँगा कि पुणे में और कुछ शहरों में ये बने हैं, मैं भी उसमें गया था। अगर मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, और जब चलाते हैं वो कर्व से और बीच में से जाते जाते वो मार्क काउंट होते हैं, और जब आखिरी में गाड़ी बाहर निकलती है तो ग्रीन लाइट अगर लगाया तो समझ लीजिए आप पास हो गए, और रेड लाइट लग गया तो आप फेल हो गए। तो चाहे एमपी रहे क्या मंत्री रहे, जो जाएगा वो लाइट किसी को सिफारिश नहीं मान सकता। आप देख रहे हैं राज्यसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पर संसद संवाद। ये विधेयक 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की एक समिति, स्थायी और प्रवर समिति के साथ विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। नई तकनीक, नई खोज और निजी निवेश की मदद से परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। Now Minister's reply. चेयरमैन महोदय, मैं आपके अनुमति से कुछ सुधार है वो पेश करना चाहता हूँ। That at page 11, line 25, for the word consultation, the word concurrence be substituted. Say clause 34,
that at page number 14, line 2, for the word consult, the word sick concerns ought to be substituted. So clause 77, that at page 37, line 24, for the word bracket and figure subsection 4, the word bracket and figure subsection 1 to be substituted. Sir, I assure the House that we will incorporate the procedure for inspection of the vehicle at the premises of the dealers by the officers of the state government, which would be provided in the rules. I will inform the members of the compliance after the rules are accordingly amended. स्पीकर महोदय, मैं सबसे पहले आपको और सभी सभागृह के सम्मान्य सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिल पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं और उनके सुझाव भी मैंने लिखकर भी लिए हैं और आगे भी जो भी सुझाव सम्मान्य सदस्यों के द्वारा आएंगे उसके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और जो पब्लिक इंटरेस्ट के उसके ऊपर निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेगी। सर, कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, पहली बात ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो देते हैं। हम किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल वैसी रहेगी और उसका एक्सपांशन होगा। हमारे तरफ से उसको बंद करने का ना कोई प्रावधान किया है ना हम कुछ कह रहे हैं। पर देश में 22 से 25 लाख ड्राइवरों की कमी है और ये जो कमी है इसके लिए हम एडिशनल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहते हैं। अब एक स्कूल खोलने के लिए वो 4 एकड़ 5 एकड़ कभी 10 एकड़ की जगह लगती है। वो ट्रैक बनता है, कंप्यूटर परीक्षा लेती है और उसके इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। उसका काफ़ी बड़ा खर्चा भी होता है, 5 से 6 करोड़ रुपए। तो हमने हमारे तरफ से एक योजना तैयार की है कि ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अगर कोई खोलेंगे तो हम उनके लिए 1 करोड़ रुपए अनुदान भारत सरकार की ओर से देंगे और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से हमारे पास आएगा और उसके ऊपर इस योजना को हम चलाएंगे। तो ये कोई योजना ऐसी नहीं है कि जो राज्य सरकार के बिना, राज्य सरकार के सहयोग के साथ है। और मैं आप सब सदस्यों का अनुरोध करूंगा कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। आवश्यकता है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, जैसे जो रूरल एरिया है, देहात के एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ आप ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलिए। और मैंने कल लोकसभा में कहा था कि आप में से सांसद भी आगे आकर इस प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए आगे आइए, हम आपको अनुमति देंगे। ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। कम से कम 1000 स्कूल खोलेंगे तब 22 लाख का टारगेट हमारा ट्रेन ड्राइवर्स का मिलेगा। बहुत से सदस्यों ने कहा कि हम कारपोरेट को दे रहे, कारपोरेट को दे रहे। हम कोई कारपोरेट को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं दे रहे। कुछ कंपनियां आगे आई और पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने कहा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए किसी कंपनी ने 25 करोड़ खर्चा किए, किसी ने 20 करोड़ खर्चा किए और अत्याधुनिक सिस्टम से फ्री ऑफ चार्ज उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एक 15, 20, 25 कुछ बड़े कंपनियों ने स्पॉन्सर करके शुरू किए सेवा के माध्यम से, उनके CSR से। दूसरी बात, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट है। हर बार आपको गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, राज्य सरकार के भी नियम है। अब इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए ये छोटे छोटे गांव में फिटनेस नहीं है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस खोलेंगे तो वही के वही गांव में उनके गरीबों की व्यवस्था होगी। और इसलिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस, इसको हम लोगों को कह रहे हैं कि आप खोलिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस का उद्देश्य, संशोधन का उद्देश्य है कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को नागरिक हितैषी बनाना है। यह उपबंध केवल यह प्रावधान करता है कि आवेदक की पहचान सत्यापित करने के उपरांत उसको लर्निंग लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ये सर ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको ऑफिस में आना ही नहीं पड़ेगा। आपकी केवल आइडेंटिटी अगर वेरीफाई हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, तो आपको लाइसेंस मिलेगा लर्निंग का। तो ये आसान कर दिया है। कोई भी किसी के लिए तो कहीं घर के बेड में उसको मिल सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है। लर्निंग लाइसेंस प्रदान करने के समय केवल सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय किया जाने वाला परीक्षण और कड़ा बनाने का प्रस्ताव किया है। मैं आपको कहूँगा कि पुणे में और कुछ शहरों में ये बने हैं, मैं भी उसमें गया था। अगर मुझे भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, और जब चलाते हैं वो कर्व से और बीच में से जाते जाते वो मार्क काउंट होते हैं, और जब आखिरी में गाड़ी बाहर निकलती है
तो ग्रीन लाइट अगर लग गया तो समझ लीजिए आप पास हो गए, और रेड लाइट लग गया तो आप फेल हो गए। तो चाहे एमपी रहे क्या मंत्री रहे, जो जाएगा वो लाइट किसी को सिफारिश नहीं मान सकता, वो कंप्यूटर है। तो ये इतनी परफेक्ट इसलिए की है कि आज तक मैं कभी आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा, अगर पूछूंगा तो वो ठीक नहीं होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हमारे में से अच्छे लोग हैं, हमारे सब जगह, मैं किसी को अपमान नहीं करता, कितने लोगों ने आरटीओ में जाकर परीक्षा देकर लाइसेंस लिया है? मैं लिया। जिन्होंने हाथ कुछ ही ऊपर आ रहे हैं मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ये सिस्टम से लाइसेंस की सिस्टम को पूरी कंप्यूटराइज किया है। अब कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं कर सकता, उसको स्टडी करके जाना पड़ेगा जैसे यूएसए में है, और स्टडी करने के जाने के बाद लेजिटिमेट जुनाइन लीगल जो परीक्षा पास करेगा उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ताकि एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, गलत लोग इसमें आने नहीं चाहिए। ये है सर, लाइसेंस अथॉरिटी की डेफिनेशन हम कोई अधिकार नहीं दे रहे, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट है ये लाइसेंस अथॉरिटी। इसके लिए यह विधेयक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को केवल हमने 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए प्रस्ताव रखा है। ये परिवहन विभागों के भार को भी कम करेगा और एक नागरिक हितकारी प्रस्ताव है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना और ऐसे स्कूलों द्वारा पेशकश किए प्रशिक्षण को हमने अभ्यासक्रम में डाला है। और इतना नहीं, एक सम्मानित सदस्य ने भी कहा था कि मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा है कि रीजनल लैंग्वेज में रूल्स ऑफ, आपने कहा था रूल्स ऑफ रोड के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाए। और इसके बारे में हम अभियान भी चला रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ भी उसमें मदद कर रही है और उनके भी सहयोग से जा रहे हैं, ताकि लोगों का जन जागरण हो। इसके साथ साथ जो कारपोरेट के बारे में बहुत से बार सभी ने कहा, मैं फिर से आपको बताऊँ, इस देश में 17 लाख बसेस है, उसमें से गवर्नमेंट की बसेस 1,70,000 है। और हम या इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक्ट है, कारपोरेशन एक्ट है, इसके नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग को बंद नहीं कर रहे, ना बंद करना चाहते, ना अधिकार लेना चाहते, जो है वो चलाइए। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तमिलनाडु में है, बिहार की परिस्थिति अलग है, वहाँ लोग टप पे बैठकर भी जाते हैं। अब वहाँ अलग अलग देश के प्रॉब्लम्स को लेते हुए हमने ये पॉलिसी लाई है। सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से लंदन में है, और लंदन ट्रांसपोर्ट में ऐसा है कि टोटल 9 ऑपरेटर है। 9 ऑपरेटर गाड़ी जो है वो अपने पैसे से खरीदता है, ड्राइवर जो होता है वो ऑपरेटर का होता है, कंडक्टर होता है कारपोरेशन का। और कंडक्टर, इसमें सब रोजगार ही बढ़ेंगे, अपनी गाड़ियाँ कम होगी, गरीबों को और रोजगार मिलेगा, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसकी आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई कारपोरेशन कहती है कि मैं 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की बस अपने पैसे से लेने के लिए तैयार, तो गवर्नमेंट की स्कीम में मदद कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कुछ कारपोरेशन की स्थिति ऐसी है, जो मैंने आपको एक बार बताया था उदाहरण, मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर रहता हूँ। एक बार एक बस आई, बस आने के बाद मैं मेरे गाड़ी में डीजल डाल रहा था और उसको बोला आगे जाओ, तो मुझे लगा ये डीजल मुझे दे रहा है, इसको क्यों नहीं दे रहा है। मैंने उसको डांटा लड़के को, अरे पेट्रोल तुम्हारे पास डीजल है, उसको नहीं क्यों बोल रहा। बोले साहब ये सरकारी बस है, ये डीजल भरने के बाद पैसे नहीं देते, इसलिए इनको हम नहीं दे रहे। अब प्रॉब्लम उस समय क्या था कि वो अंडरटेकिंग इतना अड़चन में था कि कंडक्टर टिकट बेच के डीजल खरीदते थे और उसके पैसे देते थे। अब वो भी पैसे देना बंद हो गया, तो उन्होंने उधारी पर डीजल देना बंद कर दिया। इसके बावजूद जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ जैसा भी ट्रांसपोर्ट को, ये पहला अधिकार है हमारा, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको लेना है तो ये लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल है, इसमें पैसा ही नहीं लगता। और उतने लोगों को ये विशेष रूप से अपने CPM सदस्य जो इनको बताना चाहूँगा, हम रोजगार बढ़ा रहे, कम नहीं कर रहे। आप अगर हम ये गाड़ियाँ नहीं बढ़ा रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करना ये हमारी पॉलिसी है, और इंडिविजुअल कार ओनर को डिस्करेज करना ये पॉलिसी है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिव फ्यूल लाना ये पॉलिसी है। मैं आपको बताऊंगा, आपको आमंत्रित करूंगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिस्कार्ड की गई बंगार में गई थी बसेस डीजल की, वो मैंने कारपोरेशन का पानी, गंदा पानी टॉयलेट का 180 करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बेचा। अब उस पानी से मीथेन निकाला और 7 बायोडाइजेस्टर थे, उसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मटन, मच्छी मार्केट की वेस्ट डाल के बायो CNG मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो CNG निकाला।
और 450 बसेस नागपुर कारपोरेशन की अब उस पर चल रही है, तो उससे 60 करोड़ का नुकसान कारपोरेशन का कम हो रहा है। अभी उसमें 80 बसेस हुई है, 2 महीने में प्रोजेक्ट का ओपनिंग हो जाएगा, और 150 कार है और 150 ट्रक है। अब मुझे बताइए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस, और जो 9 साल का लाइफ था डीजल बस का, वो सीएनजी से 15 साल हो गया। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है उसको इनकरेज करने के लिए आप करो तो आप करो, नहीं कर सकते तो दूसरे से करो। अब मुझे बताइए कि एविएशन भारत सरकार के साथ, वाटरवेज भारत सरकार के साथ, रेलवे भारत सरकार के पास, स्टेट ट्रांसपोर्ट स्टेट के साथ। अब मुझे बताओ, जो रेलवे से आता है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस में अपने गांव जाता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट से उतरता है वो रेलवे में बैठता है, जो हवाई जहाज से उतरता है वो अपने गांव जाने के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट पे जाता है। अब मल्टी मॉडल हब की कल्पना है कि एक ही जगह पर हमारे प्रवासियों को हवाई जहाज से उतरेगा, रेलवे से उतरेगा, तुरंत उसको अपने गांव जाने की बस मिलेगी। अब मुझे बताइए, ये मल्टी मॉडल हब करने के लिए 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और 1 स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इसको मल्टी मॉडल हब करने के लिए ये फिर भी ये राज्य सरकार के अनुमति से होगा, ये मैंने डाल दिया। दूसरी बात जो है, ये सच्चाई है, आप लोग तो इस बात को पक्की तरह समझेंगे। आज स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग अच्छे गरीबों की सेवा दे रहे, लोगों को रोजगार दे रहे, पर उनके पास बैंक अकाउंट पूरे एनपीए में चले गए। अब उनके नाम पर कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बिगड़ गई है। अब उनको नई बसेस इलेक्ट्रिक खरीदनी है तो राज्य सरकार की गारंटी पे खरीदनी पड़ेगी। अब उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। फिर हमने यह तय किया कि क्यों नहीं इसके लिए कोई फॉरेन फंड कम इंटरेस्ट का लाया जा सकता है क्या, देखिए। फिर जो अभी एयरपोर्ट बने, आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमारे जो है पार्किंग नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, रास्ते पर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने अभी एक एयरपोर्ट जैसा बस स्पॉट बनाने का प्रपोजल लाया, तो मैंने सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को कहा कि पहले तो तुम ही बनाइए, मैं आपको कंसल्टेंसी और डिज़ाइनिंग के लिए भारत सरकार की ओर से 2.5 या 3% अनुदान दूंगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आप डिज़ाइन करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जगह आपकी, बाकी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। तो इसमें कोई किसी पर बंधन नहीं है। सर, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बारे में है, पब्लिक सर्वेंट, इसका अर्थ होता है एनी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपके अगर ये टैक्स वसूल करने का जो काम है, आपने कलेक्टर को दिया या आरटीओ को दिया, जिसको भी देगा, क्लास 1 क्लास 2 जो आपका नियम होगा, वो पब्लिक सर्वेंट है। अभी पब्लिक सर्वेंट का अर्थ इंटरप्रिटेशन ये किया गया कि केंद्र सरकार कोई तो भी प्राइवेट आदमी को जाके वह अपॉइंट कर रही है। व्हेन द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट हिम? आई नेवर अंडरस्टैंड। उसमें क्या है, देखिए, नई गाड़ी आप जब खरीदते हैं तो नियम यह है कि गाड़ी आरटीओ ऑफिस में ले जाना और वो उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करता है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, टैक्स कितना है वो भरता है वहाँ, फिर उसको नंबर मिलता है और नंबर प्लेट पर लिखकर फिर गाड़ी की डिलीवरी होती है। अब पहली बात तो आपने भी कहा, ये राज्य सरकार के टैक्स के सिवा और कोई टैक्स डीलर पैसा लेगा नहीं, 1 रुपया नहीं लेगा। आपने कहा कि हम डीलर को पैसा कमाने के लिए ये खोल रहे हैं, डीलर को 1 पैसा नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। जो कंज्यूमर का अधिकार था कि उसके व्हीकल को रजिस्टर करना, वो जिम्मेदारी डीलर पर डाली। टैक्स कितना भरेगा? जितना राज्य सरकार, तमिलनाडु बोलेगी 12%, 12%, मध्य प्रदेश कहेगी 13%, 13%, और कोई केरल कहेगा 10%, 10%, वो आरटीओ बोलेगा इस गाड़ी पर हमारा टैक्स इतना है, वो ऑनलाइन जाएगा और ऑनलाइन वो नंबर प्लेट देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो, आप करना है तो करो, मैंने तो एक्सेप्ट किया। अब इसमें क्या हुआ, ये आरटीओ ऑफिस में टेक्निक, वो गाड़ी लेके जाता नहीं, तो ये लॉ इसको पूरा नहीं होता। तो आरटीओ ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ मेहनताना लेता है वो बंद हो, इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम करने का है। अब मेहनताना बंद करने के लिए अगर आप सब तो मुझे सपोर्ट करोगे, अगर तो मैंने वो भी आज मान्य किया कि ये दुरुस्ती की कि आरटीओ ऑफिसर इसका इंस्पेक्शन करने के लिए डीलर के पास जाएगा, बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन जो है ये ऑनलाइन है, ये मॉडर्नाइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज है, घर बैठे बैठे काम होगा, आपको जाने की तकलीफ नहीं होगी और नंबर मिल जाएगा। फिर आपको कोई स्पेशल नंबर चाहिए
तो आरटीओ ऑफिस कहेगा कि ये स्पेशल नंबर अगर चाहिए तुमको तो इसके लिए तुमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो राज्य सरकार का वो पब्लिक सर्वर है, तो वो कहेगा इसके लिए इतने पैसे भरेगा तो वो नंबर मिलेगा। नंबर देने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकारी का, पैसा कितना लेने का राज्य सरकार के अधिकार का। अब हम आए कहां? और मैं आपको बताता हूं, ये जो बात हुई, आपने पिछले बार हमने मंजूरी दी थी कि ट्रक वालों की नेशनल परमिट के लिए हमने फॉर्मूला तय किया और फॉर्मूला तय करके वो नेशनल परमिट अब ऑनलाइन किया। हर अनेक राज्यों का इनकम 7 गुना बढ़ा है। मैं रिकॉर्ड अभी मैंने इनको कागज दिया, 7 गुना बढ़ा है। इस कानून को लाने के बाद भारत सरकार का 1 रुपए का इनकम कोई बढ़ने वाला नहीं है। हम राज्य सरकार के जो भी पैसा मिलता है उससे 1 रुपए भी लेने वाले नहीं है। आप देख रहे हैं राज्यसभा में मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 पर संसद संवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार देश के परिवहन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक ले जाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि भारत 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के लिए ब्राजील घोषणा पत्र के अनुसार वचनबद्ध है। नितिन गडकरी ने सदन को बताया कि सरकार इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली बनाने के लिए और भी नए उपाय कर रही है। हम फिर हाजिर होंगे राज्यसभा में लोकहित के किसी मुद्दे पर हुई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।